Hello everyone, welcome to Classes Judicials. Today we are going to discuss Sales of Goods Act. But before moving further into the video, I would like to tell you that you should subscribe to the channel and click the bell icon. As well as for official notifications, you can also subscribe to my Instagram handle, which is by Classes Judicials. Let's begin with the Sales of Goods Act. Today in this video I'll be discussing the introduction of the same, the preamble of the act, and what topics we are going to discuss in the upcoming videos. I'm also going to discuss that, and we'll be discussing the term goods. So when we talk about the brief introduction of the act, so we should give priority to analyze the index page of the WARE Act. So it has 7 chapters and 66 sections, and this is a very easy technique to understand and remember which section falls in which chapter and which chapter talks about what. So this is a way to remember the section. So this what I am highlighting is the way to remember the section. So try to create some tricks. That's the first fundamental basis, because everything you cannot remember, but through tricks it is quite possible that you can remember some particular section numbers or maybe the chapter numbers. Now moving further into the introduction, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे वाली वीडियोस में वो भी बता देती हूँ. टॉपिक्स क्या क्या होंगे. तो आज का टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, किस तरीके से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना, उससे पहले क्या था, अब क्या है, एग्जॉस्टिव है या नहीं है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है या नहीं है. प्रेम्बल को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, प्रेम्बल के वर्ड्स को समझेंगे. जब हम प्रेम्बल के वर्ड्स को समझते हैं तो हम एक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरप्रेट कर पाते हैं. प्लस जब हम डेफिनेशन क्लॉज के बारे में बिल्कुल क्लियर होते हैं, वी हैव ऑल द क्लैरिटी अबाउट द डेफिनेशन क्लॉज, देन ऑल्सो इट बिकम्स क्वाइट पॉसिबल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड like what intention would have been of the legislature. So we'll be discussing the introduction, then we'll be discussing the concept related to contract of sale, in which we'll be discussing the essential conditions of contract of sale. Then we will be discussing the distinction between sale and agreement to sell. What do you mean by sale? What do you mean by agreement to sell? Then moving further into the aspects into the subject, we'll also discuss hire purchase agreement and the what you mean by co-sale. Then the conditions, warranties, what do you mean by the implied condition, or what is the concept of caveat emptor. Those concepts are very important. We'll be discussing in detail about them. Condition of warranty through illustration we'll be discussing, so that you will be able to understand what exactly do you mean by these two terms, condition and warranty, as it plays important role in Sales of Goods Act. Then moving further into the act, we'll also discuss about the effects of a contract, transfer of title, performance of a contract. Then what are the rights of the unpaid seller, what do you mean by unpaid seller. Now let's move into the historical the introduction part. Earlier the Sales of Goods Act were included in Indian Contract Act as in chapter 7, but later on the need was felt that the separate law should be made, and we should have certain different separate law. So then we came up with the provision of Sales of Goods Act, but in prior to by 22nd September 1963, it was known by the name of Indian Sales of Goods Act, but later on after the amendment it became Sales of Goods Act. So sometimes in pre this question occurs, pre में ये question पूछ लिया जाता है कि कौन सी डेट के कौन से amendment के बाद ये Sales of Goods Act हुआ, या prior to this क्या था. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इस क्वेश्चन का आंसर है कि पहले जो है इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था, बट आफ्टर दी अमेंडमेंट इट बिकेम दी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. Now the enforcement it came into enforcement on 1st of July 1930. Now it is very important to understand the preamble. The preamble of the act, as it has already mentioned, that it is an act to define and amend
the law relating to the sales of goods. This is the law relating to specifically dealing with the sale of goods. This means that an act in itself is not at all exhaustive, but it is dependent upon like the provisions of the Indian Contract Act, because Indian Contract Act में से ये आया है. As per section 3 of the act, of this act, it says that the word defining and amending would mean that in any case अगर कोई अर्लियर डेफिनेशन कहीं पर भी पुट की गई है विद रेस्पेक्ट और वो यहाँ पर भी सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन किया गया है, तो देन इन दो सेंसेस वो वाली डेफिनेशन कंसिडर नहीं की जाएगी, ये वाली डेफिनेशन हम लोग कंसिडर करेंगे जो सेक्शन 2 के अंदर आता है. उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है, प्राइस क्या होता है, गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट का क्या मतलब होता है, गुड्स का क्या मतलब होता है. इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्यू डेफिनेशंस before going into the depths and the details of the act. तो जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि बायर वो पर्सन होता है जो कि बाय करता है, एग्री टू बाय करता है कि हाँ मैं ये गुड खरीदूंगा. सेलर वो होता है जो सेल करने के लिए एग्री करता है या सेल करता है, उसको हम सेलर कह देते हैं. गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है और गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट का क्या मतलब है, विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 clause 3. So it means that when they are in such a situation, when the goods are in such a situation that the buyer would under the contract be bound to get the delivery ऑफ देम. और उसके अलावा गुड्स का मतलब क्या होता है. गुड्स देखो, हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर रहे हैं. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टीपी एप्लीकेबल होता है. ठीक है, पहली चीज़ तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टीपी एप्लीकेबल होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे जो है आपका गुड्स की डेफिनेशन में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट फॉलो इन करता है. एक्शनेबल क्लेम और मनी रिगार्डिंग जो सूट्स हैं उनको छोड़ करके जितनी भी और चीज़ें हैं, जैसे कि आपका फॉरेन करेंसी, ठीक है, जैसे कि आपका कोई करेंसी जो कि एक्सट्रिंसिक, दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होती है करेंसी के अंदर भी एक्सट्रिंसिक, एक होती है इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक का मतलब से फॉर एग्जांपल अब वो करेंसी नहीं चलती हैं. एक्सट्रिंसिक मतलब एट्रिंसिक मतलब वो करेंसियाँ जो अभी फ्लो में है गवर्नमेंट की तरफ से. तो से फॉर एग्जांपल जब हमारे अभी 1000 का नोट बंद हुआ था, 500 का नोट चेंज होकर नया नोट आया था, तो जब हमने डीमोनेटाइजेशन किया था, सो नाउ दोज करेंसीज जो अगर उन करेंसी को लेके कुछ लोग होते हैं जिनको शौक होता है, वो करेंसियाँ कलेक्ट करते हैं, उनके पास वो करेंसी है तो अब वो उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं. दोज करेंसी द इंट्रिंसिक मनी would come under the term good in the sales of goods act. तो हम उसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की टर्म के अंदर डालते हैं. उसके अलावा आपका स्टॉक हो गया, शेयर हो गया, कोई ग्रोइंग क्रॉप हो गया. ग्रोइंग क्रॉप का क्यों हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डालते हैं, अनलेस अनटिल इट इज सिवर्ड इट विल बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट एज सुन एज इट इज सिवर्ड विद द इंटेंशन ऑफ सेलिंग it becomes movable property, and as soon as it becomes movable property और उसकी goods की buying and selling होने लग जाती है तो it becomes goods. उसके बाद things attached to earth agreed to be sold. Things attached to the earth मतलब हो सकता है कि से फॉर एग्जांपल आपकी बनियान ट्री है, या से फॉर एग्जांपल आपकी शीशम ट्री है. शीशम ट्री जब तक धरती के अंदर है, मतलब काटा नहीं है, उसे सिवियर नहीं किया, तब तक तो इट वुड बी कॉल्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. बट उसको काट दिया और उससे क्या सोफा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चेयर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, स्टूल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इट बिकम मूवेबल प्रॉपर्टी. तो शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे आया 1958 सुप्रीम कोर्ट में, यही हेल्ड हुआ था कि जो शीशम की लकड़ी है या जो टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर है, वो अगर एक बार सिवियर कर दिया गया लैंड से और बिफोर द सेल, देन इट बिकम्स द मूवेबल प्रॉपर्टी. सेल से पहले अगर उसको सिवियर कर दिया गया तो उसको देन इट बिकम्स द मूवेबल प्रॉपर्टी. एंड देन एज पर सेक्शन 2 clause 7 of the act of this act, 2 clause 7 means the goods, it will fall under a definition of goods. It was in the nature of a crop or it is ready to be sold.
इट कुड बी परचेज बाय द बायर, बट अगर कोई ट्री है, ट्री को यूजुअली हम इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हैं अनलेस एंड अनटिल हम क्या कहते हैं उससे किसी और इंटेंशन से, किसी और पर्पज से यूज़ करना चाहें. अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है, कैन डोर्स एंड विंडोज बी कंसिडर्ड एज गुड्स? आपको क्या लगता है, कैन डोर्स एंड विंडोज बी कंसिडर्ड एज गुड्स एज पर सेक्शन 2(2)? अगर हम डोर्स और विंडोज़ की बात करें तो डोर्स एंड विंडोज कुड बी severed फ्रॉम द लैंड, एंड एज सुन एज they'll be severed from the land, they'll be treated as goods, and it was held in the case of the Badri Prasad versus State of MP. It was in AIR 1970 case of the Supreme Court. अब इसके अलावा आपको इम्पॉर्टेंट सेक्शंस बता देती हूँ. डेफिनेशन तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है कि डेफिनेशन क्लॉज क्या कहता है आपका, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रखता था कि गुड की डेफिनेशन में क्या फॉल इन करेगा, गुड की डेफिनेशन में क्या फॉल इन नहीं करेगा. सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. नाउ लेट्स क्विकली जंप इनटू सम इम्पॉर्टेंट सेक्शंस बिफोर मूविंग इनटू दी फर्दर वेयर एक्ट. सो सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है एग्रीमेंट और एग्रीमेंट टू सेल. सेक्शन 5 बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल क्या होता है. 6, 7, 8, 9, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है. 11 से लेकर के 17 बहुत इंपॉर्टेंट है. कंडीशंस और वारंटी की बात करता है वो. उसके बाद 31 से 33 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन 45, 46 राइट ऑफ अनपेड सेलर और अनपेड सेलर्स लियन का राइट जो होता है वो, उसके बारे में डिस्कस करता है. 47, फिर 50 से 52 बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर 50 और 64 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है. सो दिस इज द होल introduction of the act. I hope you like the video. Please share among your friends and keep liking and sharing to the channel. Also you can also get connected with me on Instagram page for further updates. I'll be coming up with the part 2 of this, wherein we'll be discussing section 4, 5, 6 and 7. Thank you. Bye bye.